Assalamualaikum. Welcome to Rahbar Group of Institution. Today I will take Mathematics Standard 4th Chapter Fraction. Now class, the meaning of fractions, reading and writing fractions. One bhakri has to be divided equally between two people. एक रोटी दो लड़कों में बराबर बांटना है. When it is divided into two equal parts, each of the parts is one half of the whole भाकरी. इसके दो बराबर हिस्से करें तो इनमें से एक हिस्सा पूरी रोटी का आधा हिस्सा होता है, यानी कि वन हाफ. Now look here, this is a complete roti. In Hindi we called it रोटी और भाकरी. ये कंप्लीट रोटी है. इस रोटी के हमने दो हिस्से किए, हाफ रोटी हाफ रोटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब किसी चीज के दो बराबर हिस्से करे, देन ईच ऑफ द पार्ट्स इज वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनमें से एक हिस्सा ले तो वो इस चीज का आधा हिस्सा यानी कि हाफ पार्ट होता है. वन हाफ ऑफ द होल इज शोन बाय द फ्रैक्शन. इसे हम फ्रैक्शन में इस तरह से शो करते हैं, 1/2. नाउ क्लास लुक, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मीन्स 1/2 1/2 means this is half and this is also half. Next point, we see next point, quarters. One bhakri has to be divided equally between four people. एक रोटी चार बच्चों में बराबर बांटना है. When it is divided into four equal parts and one part is given to each person, each share is a quarter of the whole bhakri. इसके चार बराबर हिस्से करे कि हर बच्चे को एक हिस्सा दे तो वो उस रोटी का पाव हिस्सा होता है. पाव हिस्सा यानी कि क्वार्टर. नाउ दिस इज होल रोटी. Now this whole roti is divided into four equal parts. Each part is called a quarter. One quarter, one quarter, one quarter, one quarter. Next, when any object is divided into four equal parts, each of those parts is a quarter of the whole. एक चीज के चार बराबर हिस्से करके इनमें से एक हिस्सा ले तो वो इसका क्वार्टर होता है. नाउ लुक एट दिस फिगर. दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. नाउ इट इज 1/4 1/4 1/4 1/4 means a quarter a quarter a quarter a quarter. In fraction it is shown as 1/4. Numbers such as 1/2, 1/4 are called fractions. Now, these 1/2, 1/4 are called as fractions. In a fraction, the number written above the line is the numerator and the number written below the line is the denominator. Now look, in a fraction, 1/2, the numerator is 1 and the denominator is 2. Now class look, this is a fraction 1/2. This 1 is written above the line. ये 1 लाइन के ऊपर लिखा गया है, so this is called as numerator. And this 2, it is below the line. ये लाइन के नीचे लिखा गया है, so it is called as denominator. Now class याद रखिए इसे आप, जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूमरेटर,
जो नंबर्स लाइन के नीचे आते हैं दे आर कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। ना अब देखते हैं इसे पढ़ने का तरीका। 1/2 इज रीड एज 1/2 और 1/2। 1/2 को हम 1/2 भी कह सकते हैं और 1/2 भी कह सकते हैं। इन उर्दू वी कॉल्ड इज 1/2। 1/4 is read as 1/4 और 1/4 और 1/4। 1/4 को हम इस तरह पढ़ेंगे 1/4 या 1/4 या 1/4 यानी 1/4। This is the information of page number 51. Now we move to page number 52. Next point is 3/4. 3 children bought a cake. 3 बच्चों ने केक खरीदा and asked their grandfather to divide it equally among the 4 of them including himself. और दादाजी से कहा कि आपको मिलाकर चारों में बराबर बांट दीजिए। Grandfather divided the cake into 4 equal pieces. दादाजी ने इस केक के 4 इक्वल पार्ट्स किए। Each piece is 1/4 of the cake. इनमें से हर एक हिस्सा पाव केक था यानी कि 1/4। Each piece is 1/4 of the cake. Grandfather gave Raju, Rani and Pinky 1/4 each and kept the last quarter for himself. दादाजी ने राजू, रानी और पिंकी को हर एक को पाव हिस्सा यानी क्वार्टर हिस्सा दिया और बाकी का क्वार्टर केक अपने लिए रखा। Grandfather gave his 2 granddaughters quarter plus quarter. That is half of the cake. दादाजी ने 2 पोतियों को मिलाकर पाव प्लस पाव यानी क्वार्टर प्लस क्वार्टर यानी हाफ केक दिया। He gave these 3 grandchildren quarter plus quarter plus quarter 3/4 of the cake. तीनों पोते पोतियों को मिलाकर पाव प्लस पाव यानी पौन केक दिया। मीन्स 3/4 of the cake is given to grandchildren. 1/2 and 1/4 also make 3/4 of the whole. आधा और पाव मिलाकर पौन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, now when an object is divided into 4 equal parts, जब किसी भी चीज के 4 इक्वल पार्ट करे, 3 of its part taken together are called 3/4 और इनमें से 3 हिस्से ले तो लिया हुआ हिस्सा पौन होता है यानी कि 3/4 यानी कि पौन होता है। Now look at this figure. This one object is divided into 4 equal parts, 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. These 3 quarters shows 3/4. 1/4 plus 1/4 plus 1/4. It becomes 3/4. Now 3/4 is read as 3/4 और 3/4। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, 3/4 और 3/4। इन उर्दू वी कॉल्ड इट 3/4। नेक्स्ट पॉइंट, सम मोर fractions. Here a circular disc is divided into 5 equal parts. यहाँ एक सर्कुलर डिस्क को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड 3 of its पार्ट आर कलर्ड और 3 हिस्सों में कलर्ड किया गया है।
The colored part of the disc is shown as 3/5. Now look class, this is a circular disc. This disc is divided into 5 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5. यानी इस एक डिस्क को 5 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 3 पार्ट्स को कलर किया गया है. सो फ्रैक्शन में हम इसे इस तरह लिखेंगे 3/5. 1/5 plus 1/5 plus 1/5 together makes 3/5. That is 1/5 plus 1/5 plus 1/5 is equal to 3/5. Next, when an object is divided into 5 equal parts and 3 of them are taken, that part is shown as 3/5. किसी भी एक चीज के 5 बराबर हिस्से करे और इनमें से 3 हिस्से ले तो लिए हुए कुल हिस्सों को मिलाकर 3/5 इस तरह से शो करते हैं. Here the denominator 5. यहाँ पर denominator 5 है. The denominator 5 shows how many equal parts are made of the whole. 5 शो करता है कि चीज के कितने बराबर हिस्से किए गए हैं. And the numerator 3 shows how many of those are taken. और numerator 3 शो करता है कि कितने हिस्से लिए गए हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी. This strip has been divided into 7 equal parts. इस पट्टी के 7 बराबर हिस्से किए गए हैं. And 2 parts are colored. इनमें से 2 हिस्सों में रंग भरा गया है. Which means 2/7 of the strip is colored. यानी 2/7 हिस्से में colored किया गया है. Here the number 7 gives the total number of equal parts made. यानी 7 शो करता है कि कितने बराबर हिस्से किए गए हैं. And 2 gives the number of parts taken. And 2 शो करता है कि इनमें से कितने हिस्से लिए गए हैं. In the fraction 2/7, 2 is the numerator and 7 is the denominator. Now look class, this is the strip. It has 7 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now these 7 parts is divided equally. इनमें से 2 parts को colored किया गया है 2. So the fraction become 2/7. 2 is called as numerator and 7 is called as denominator. See some more examples. You can work out the meanings of the fraction such as 8/11 or 7/13, just like the fractions 3/4, 3/5 and 2/7. Now we will move to page number 53. Different meanings of fraction. Amita was given 2 parts out of 3 equal parts of a भाकरी. अमिता को एक रोटी के 3 इक्वल हिस्सों में से 2 हिस्से दिए गए हैं. This is 1 roti and Amita was given 2 equal parts of 3 equal parts of 1 bhakri. This means Amita was given 2/3 of 1 bhakri. इसका मतलब अमिता को 2/3 रोटी दी गई है. Now इसे देखते हैं क्लास. 2 bhakris of the same size as Amita's have to be divided equally between 3 girls, Sadhana, Anushka and Preeti.
अमिता को दी हुई रोटी के साइज के इक्वल रोटियां साधना, अनुष्का और प्रीति तीनों में बराबर डिवाइड करनी है। नाउ ये एक रोटी और ये एक रोटी, इस एक रोटी को तीनों गर्ल्स में इक्वली डिवाइड करना है। इस एक रोटी को भी तीनों गर्ल्स को इक्वली हिस्से में बांटना है। नाउ साधना गेट 1/3, साधना गेट 1/3। नाउ लुक, साधना शेयर 1/3, 1/3। अनुष्का's share 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Preeti's share 1/3 plus 1/3. It means the two bhakris were divided into 3 equal parts each. दोनों रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए गए हैं। One part of each bhakri was given to साधना, अनुष्का एंड प्रीति। हर रोटी से एक एक हिस्सा तीनों गर्ल्स को दिया गया है। नाउ each girl was given 1/3 part twice. हर एक को 1/3 दो मर्तबा दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3। हर गर्ल को 1/3 प्लस 1/3 2 टाइम्स यानी दो मर्तबा दिया गया है। दैट इज ईच गॉट 1/3 प्लस 1/3। However, Amita's share and that of each of the other 3 girl is the same. हर एक, लेकिन अमिता और दिगर तीनों को हर एक को मिला हुआ हिस्सा इक्वल है। Hence, we can see that 2/3 is equal to 1/3 plus 1/2. This fraction 2/3 को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1/3 प्लस 1/3। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते और न्यूमरेटर को 1/3 में शो कर सकते हैं। Note that when 2 bhakris are divided between 3 girls, each girl gets 2/3 भाकरी। अब ये भी ज़हन नशीन कीजिए कि दो रोटियों को तीनों में बराबर बांटने पर हर एक को मिला हुआ हिस्सा 2/3 है। It means that 2/3 can be explained in 3 different ways. इस 2/3 को 3 अलग अलग तरीकों में हम लिख सकते हैं। नंबर 1, 2 parts out of 3 equal parts of an object. एक चीज के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। सेकंड, 1/3 twice, which means 1/3 plus 1/3. Twice means 2 times. 1/3 plus 1/3. Which also means इसका एक और मीनिंग होता है 2 into 1/3, यानी 1 जो है वो 2 टाइम्स है और 2 टाइम्स 1/3। लास्ट पॉइंट, इक्वल डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 3 पीपल। 2 चीजों को तीनों में बराबर बांटना। नाउ क्लास, वी मूव टू पेज नंबर 54। एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें फिलअप करना है। फ्रैक्शंस है पहला पॉइंट 4/5। इसके हमें 3 फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है एडिशन में लिखना है, देन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अपने को सॉल्व करके दिया।
4/5। इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ये हो गया इसका एडिशन फॉर्म। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और डिनोमिनेटर जैसा का वैसा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 1/5 को हमने 4 टाइम्स लिखा। 1/5 को हमने 4 टाइम लिखा। 4 1 जा 4, दिस इज 4। नाउ हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 4 टाइम्स 1/5। जो 1 है इट इज ऑफ 4 टाइम्स। नाउ अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फ्रैक्शन 3/4। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, इस ऑब्जेक्ट के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए और 3 लोगों में बांट दिए। तो इसको हम इस तरह शो करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3। नाउ अब इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम पहले 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, सो वी राइट इज 3। 3 1 जा 3। नाउ हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 3 टाइम्स 1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/7। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हमने 3/7 पार्ट्स किए। हर एक को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। नाउ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 3 टाइम्स 1/7। इस तरह से हम, कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज 5/6। इसके 6 इक्वल पार्ट्स है। 6 इक्वल पार्ट्स में से हमने 5 लोगों में इसे डिवाइड किया। सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. It is divided into 5 equal parts. Now, in multiplication, it is written as 1/6 multiplied by 5. Means 5 times 1/6. Second, write the shaded and unshaded parts of the shapes below as fractions and in words. Now look, शेप आपको दिए गए हैं। इस शेप में शेडेड पोर्शन रीड एज, अनशेडेड पोर्शन रीड एज। Now look, this shape is divided into 8 parts. How many parts? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8. Shaded कितना है? Shaded part 1, 2, 3. So it becomes 3/8. अब इसको रीड करेंगे 3/8, 3/8. अनशेडेड फ्रैक्शन, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8. पहले हम काउंट कर चुके। हमको शो करना है अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज 5. इट बिकम्स 5/8. रीड एज 5/8. Second question, I will solve it. Now look at this figure. Listen, how many parts it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has 8 parts. How many parts are shaded? कितने parts shaded है? 1, 2, 3, 4. 4 parts are shaded.
Now we write as 4 upon 8. Now write first 8 equal parts. Now how many parts are unshaded? 1, 2, 3, 4. 4 parts are unshaded. So it become 4 upon 8. 4 upon 8. Now, third question. First look how many parts. 1, 2, 3, 4, 5. Right like this. Total are 5 equal parts. How many shaded? 1, 2. 2 are shaded. हम इसे इस तरह कॉपी करेंगे. 2 upon 5. 2 upon 5. Now, how many are unshaded? 1, 2, 3. 3 are unshaded. So हम लिखेंगे इसको 3 upon 5. Now, class, these two questions are your homework. We move to last page, page number 54. Now, third, write the given fraction in the blue box and color an equal part in the given shape. First question, 2/3. 2/3 means 2 upon 3. Now 2 upon 3 हमें 2 पार्ट्स को कलर करना है इस तरह से. 2 upon 3. Next 4 upon 8. 4 upon 8. तो यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स को कलर करना है. Like this. Third question, 5 upon 5 6, यानी 5 upon 6. तो यहाँ पर हमारे को 5 पार्ट्स को कलर करना है. Now, these remaining are your homework. We move to last question. Write the numerator and denominator of each of the following fractions. Now 3 upon 7 को हमें बताना है कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है. So these 3 is called as numerator. And the 7 is called as denominator. Now class, एक एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व करके दिया. आप इसे नोटबुक में इस तरह से सॉल्व कीजिए. 8 इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, 11 इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर. इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करना है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सी यू सून.